हेलो एवरीवन, आज एक और हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने वाले हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो हम पीवाई के जो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो इसी बेस पे करेंगे, डिटेल एनालिसिस। हमारा यहाँ पे ये न्यूज़पेपर का है आर्टिकल, व्हाट माय जनरेशन कैन लर्न फ्रॉम जेन ज़ी एंड हाउ वी कैन हेल्प। ठीक है कि जेन ज़ी से हमारी जनरेशन क्या सीख सकती है और उसमें कैसी हेल्प मिलेगी। तो इसमें देखो ये लिखा है, जेन ज़ी हैज़ कंपाइल्ड एज द कंट्री टू सिट अप एंड लिसन। सिट अप लिसन का मतलब है उसी चीज़ को फॉलो करना, उससे रिगार्डिंग ये आगे आएगा तो उसमें हम डिस्कस भी कर लेंगे, जो भी वोकेबलरी होगी उसमें। एक बार के लिए हम सिर्फ इसको रीड करते हैं। नेक्स्ट है, those of us who have Gen Z children may come, we show a glimpse of their potential before the rest of society did. Yet if we are honest, we misunderstood them. They began with a demand that should never have required a nation allegation in a mature democracy. Examination must be conducted honesty and public institution must accept responsibility for their failures. The years that young people devote to preparing for their future can't be treated as the expendable. I desire say that they have changed the political language of protest. What began as the reclamation of an insult has been transformed into an identity of survival, collective and strength and sheer belonging. By covering a label meant to diminish them into a basis of the resilience and the solidarity, they have forget a new political vocabulary, one that connected individual experience with the collective identity and turns humiliation into hope. When section of the established media failed to show what was happening, the protester represented themselves. Their phones became camera and they needed no newsroom to broadcast. Some people have diminished Gen Z methods as non-serious and even obsessed. They have misunderstood the political intelligence of the humor. Satire and expose arrogance with an immediacy the formal speeches rarely achieve. It can bring together people who do not belong the same organization or speak the same ideology vocabulary. Their irrelevant language arrested that it is not the duty of the citizen to assume the language and the manners preferred by those in authority. What made me specially admire these young protesters is that they have normalized a fundamental democracy principle which I and others have been repeating over and over again. An electoral mandate does not relieve a government of the duty to answer citizens between elections. Gen Z has shown other citizens that beyond parliament and elections, democracy also believe in campus. Collectives, independent media, public meeting, and the peacefully protest. When institutions fail to act fairly or become unsensible, citizens have the
have the right approach the doors of power together and demand that they be opened. While the resignation of the minister and the other communities they secured from the BJP lead central and state government are important achievement. The deeper significance of these protests lies in restoring the conviction that organized citizens can still make a powerful government answerable. The confidence belongs to everyone who participated, documented, volunteered, provided water and food, offered legal assistance, cared for the injured, or supported the movement from another town. It is now our obligation to remain present when protests face intimidation, arrest, vilifications, and exhaustion, to carry their demands into legislatures and ensure that promises made during a crisis are honored. Some are asking if the Cockroach Janta Party will be formal political party. Other will warm the engage or allying with political parties will be compromise the purity of their demands of accountability. These decision these decision of course belong to individual, but they also deserve patience democracy decision by the people who built the movement. There is no obligation to convert moral authority into electoral candidature, but there is no shame in people seeking institutional power if they are eventually decide that their purpose required it. Whatever organizational course they choose, my most fervent wish is that they preserve the qualities that made his mobilization power. Gen Z in India contains profound inequalities caste, gender, religion, disabilities, language, reason, and family income determine who receive opportunities, who can afford repeated attempts, who is here, and who encountered the hardest repetitions. A, gener- a generation movement acquires lasting democracy force when those differences are represented with its concern. The youth have given us hope. It is now our turn to return the courtesy and not let their hopes be dashed. As the student of Paris declared in May 1968, soyez realistic demandes impossible. Be realistic, demand the impossible. ये हमारे राइटर का लिखा हुआ है. इसको हम देखते हैं हमारे हिंदी में. ठीक है, अब इसकी एक लाइन को हम हिंदी में देखेंगे. ये हमने स्ट्रीम किया है पढ़ करके कि क्या कहना चाहता है ऑथर इसमें. वॉट माई जनरेशन कैन लर्न फ्रॉम जेन जी एंड हाउ वी कैन हेल्प. यानी मेरी पीढ़ी जेन जी से क्या सीख सकती है और उनकी मदद कैसे कर सकते हैं हम. तो पहले पैराग्राफ में दिया गया कि जेन जी हैज़ कंपाइल्ड द कंट्री टू सिट अप एंड लिसन. जेन जी ने पूरी कंट्री को उस कंपाइल का मतलब होता है ध्यानपूर्वक सुनने के लिए. कंपाइल का मतलब मजबूर करना. सिट अप एंड लिसन मतलब एकदम ध्यान से सुनने के लिए मजबूर कर दिया गया. दोज हु अस हैव जेन जी चिल्ड्रंस मे काम वी शो अ ग्लिम्पस ऑफ दियर पोटेंशियल बिफोर द रेस्ट ऑफ सोसाइटी डिड. जिन लोगों के बच्चे जेन जी पीढ़ी से आते हैं वे कह सकते हैं कि हमने समाज के बाकी लोगों से पहले उनकी क्षमता में एक झलक
देख ली थी। क्या है कि उनमें भी क्या है कि वो सारी कैपेबिलिटी थी पहले से। देन नेक्स्ट है हमारे पास, येट इफ़ वी आर ऑनेस्ट वी मिसअंडरस्टूड दैम। लेकिन अगर हम ईमानदारी से कहें तो हमने उन्हें गलत ही समझा है। वो एक राइट डायरेक्शन में, एक फ्यूचर के डायरेक्शन में जा रहे हैं। नेक्स्ट है, द बिगेन विद अ डिमांड दैट शुड नेवर हैव रिक्वायर्ड नेशनल एलिगेशन इन द मैच्योर डेमोक्रेसी। और उनकी मांग की शुरुआत कहाँ से हुई थी कि एक मैच्योर डेमोक्रेसी हो जो कभी भी राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। उनका बस डिमांड ये था कि किसी भी चीज़ में अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस होना चाहिए, चाहे वो पेपर हो चाहे किसी भी चीज़ में हो, फेयरनेस इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, एग्जामिनेशन मस्ट बी कंडक्टेड ऑनेस्टी एंड द पब्लिक इंस्टीट्यूशन मस्ट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दियर फेलियर्स। और परीक्षाएं ईमानदारी से यानी ऑनेस्टी से ऑर्गेनाइज करनी चाहिए उन्हें। और जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे ये सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनको ये एक्सेप्ट भी करना चाहिए अगर फेलियर देखने को मिले। The years of the young people devote to preparing for their futures can't be treated as a expendable। और युवाओं द्वारा अपने भविष्य की तैयारी में लगाए गए वर्षों के बेकार और महत्वहीन को नहीं समझा जा सकता। मतलब उन्होंने अपना कितने ईयर्स राइट और कितना अपना टाइम, कितनी अपनी एनर्जी वेस्ट की है उसके पीछे। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला है, आई डेयर से दे हैव चेंज द पॉलिटिकल लैंग्वेज ऑफ प्रोटेस्ट। और डेयर का मतलब होता है साहस करना, किसी भी चीज़ को बताने का। कि मैं साहस के साथ ये चीज़ कह सकता हूँ कि उन्होंने इस जो पॉलिटिकल लैंग्वेज टाइप का जो प्रोटेस्ट था उसकी लैंग्वेज को ही बदल के रख दिया। What began as the reclamation of the insult has been transformed into an identity of survival, collective strength and shared belonging। जो शुरुआत में अपमान का जवाब देने के रूप में शुरू हुआ था वह अब अस्तित्व या समूह शक्ति, कलेक्टिव स्ट्रेंथ और अपनत्व में पहचान बदल दी उन्होंने। By covering a label, I meant to diminish them into a basis of resilience and solidarity. They have forget a new political vocabulary। और उन्हें नीचा दिखाने के लिए दिए गए नाम को उन्होंने अपनी दृढ़ता और एकजुटता, मतलब रेजिलेंस एंड सॉलिडेरिटी के प्रतीक के रूप में बदलकर एक नई वोकेबलरी उन्होंने प्रिपेयर की। One that connected individual experience with collective identity and turns humiliation in hope। ये एक ऐसी वोकेबलरी है जो कि खुद इंडिविजुअल एक्सपीरियंस की है, सामूहिक पहचान से जोड़ती है और अपमान को आशा में बदल देती है। जो भी उनका अपमान कर रहा है उनको वो चीज़ क्या लगती है, एक टाइप से होप लगती है। When section of the established media failed to show, जो काम मीडिया का था वो करने में वो सक्सेस नहीं रहा। What was the opening the protest represent themselves, तब उन्होंने अपने प्रोटेस्ट ने अपने स्वयं की आवाज़ की दुनिया बनाई और लोगों तक पहुंचाया। Their phones became camera and they needed no newsroom to broadcast। और उन्हें किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं थी कैमरास की, न्यूज़ रूम की, अपनी बात को रखने के लिए। हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है। नेक्स्ट में हमसे
कहा है सम पीपल हैव डिसमिस्ड जेनजी मेथड्स एज नॉन सीरियस एंड इवन ऑप्शंस। कुछ लोगों ने जेनजी के तरीकों को गैर गंभीर और यहाँ तक कि अश्लील कहकर खारिज भी किया है, लेकिन दे हैव मिसअंडरस्टूड द पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमर। उन्होंने हास्य की राजनीति समझ और प्रभाव को गलत समझा है। जिस तरीके से उन्होंने ट्रोल करके उस चीज़ को हाईलाइट किया। द स्टेयर का मतलब होता है व्यंग्य, क्रिटिसिज्म करना। कैन एक्सपोज एरोगेंस विद एन इमिडेंसी दैट फॉर्मल स्पीचेस रेयरली अचीव। जो ये क्रिटिसिज्म किया गया व्यंग्य उस अहंकार को तुरंत उजागर कर सकता है जिसे औपचारिक भाषण अक्सर उजागर नहीं कर पाते हैं। मतलब एकदम अच्छे अच्छे तरीके से स्पीचेस देना, है ना, उसमें वो चीज़ नहीं आती है जिस तरीके से उन्होंने वीडियो बना करके उसको हाईलाइट किया। इट कैन ब्रिंग टुगेदर पीपल हु डू नॉट बिलोंग टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन और स्पीक द सेम आइडियोलॉजिकल वोकेबलरी। यह ऐसे लोगों को भी एक साथ ला सकता है जो ना तो एक ही संगठन से जुड़े हों ना ही एक विचारधारा की भाषा बोलते हैं। द irrelevant The irrelevant language asserted that it is not the duty of citizen to assume the language and manners preferred by those in authorities। उनकी बेबाक और आनंदपूर्ण भाषा ने यह स्पष्ट कर दिया irrelevant कि उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये चीज़ दिखाने की कोशिश की है कि नागरिकों का ये कर्तव्य नहीं कि वह सत्ता में बैठे लोगों की पसंद और भाषा को, व्यवहार को ही अपनाएं, अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज भी कर सकते हैं। What made me specially admire these young protesters is that they have normalized a fundamental democracy principle। इन युवा प्रदर्शनकारियों ने जिस बात से मुझे विशेष रूप से प्रभावित किया है वह यह है कि एक मूलतांत्रिक सिद्धांत को सामान्य बना दिया है इसने। जो फंडामेंटल डेमोक्रेसी प्रिंसिपल था उसको एकदम नॉर्मल कर दिया गया, which I and others have been repeating over and over again, जिन्हें मैं और अन्य लोग बार बार दोहराते रहे हैं। An electoral mandate does not relieve a government of the duty to answer to citizen between election। चुनाव में मिला जनादेश सरकार के चुनाव के बीच नागरिक के प्रति जवाबदेही होने के लिए कर्तव्य से मुक्त नहीं करता है। मतलब ये कि अगर कोई गवर्नमेंट या जीत जाती है, इलेक्शन को विन कर जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर टाइम उन्हीं का राज चलेगा। ये डेमोक्रेसी है तो इसमें पीपल्स की चलती है, राइट। और यहाँ पे उस अकॉर्डिंग काम में लिया गया। Gen Z has shown other citizens that beyond parliament and the election, democracy also live in campus, collective, independence, media, public meeting and peaceful protest में है। तो इन्होंने क्या दिखाया कि जेनजी ने अन्य नागरिकों को दिखाया कि संसद और चुनाव के अलावा लोकतंत्र या फिर जो भी स्कूल, कैंपस जो भी है वहाँ पे सामूहिक संगठन, स्वतंत्र मीडिया, सार्वजनिक बैठकों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में जीवित रहता है। मतलब अगर वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो उनके राइट्स हैं। When institutions fail to act fairly or become inaccessible, citizens have the right to approach the doors of power together and demand that they can be opened। अब जब ये इंस्टीट्यूट अगर फेयर नहीं कर पाते हैं तो उस टाइम पे क्या रहता है कि जो नागरिक हैं वो उस टाइम बाहर आते हैं, एकजुट होते हैं और उस डोर तक पहुंचने
की कोशिश करते हैं जहाँ पे उनके जो भी डिमांड्स है उनको सुना जाए। नेक्स्ट है हमारे पास, वाइल द रेजिग्नेशन ऑफ द मिनिस्टर एंड अदर कम्युनिटीज़ ऑफ सिक्योर फ्रॉम द बीजेपी लीड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर इम्पोर्टेंट अचीवमेंट। हालांकि किसी मंत्री का इस्तीफा और भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त ये आश्वासन महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं। मतलब अगर बीजेपी लीड कर रही है स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रूल्स वो ही फॉलो करेंगे, वो ही चलें। हम पीपल्स भी अपने अकॉर्डिंग उस पूरी की पूरी गवर्नमेंट को बदल सकते हैं, पावर होती है। द डीपर सिग्निफिकेंट ऑफ दीज प्रोटेस्ट लाइज इन द रोस्टिंग the convention that organized citizen can still make a powerful government answerable। और इन प्रदर्शनों का वास्तविक महत्व इस विश्वास को पुनः स्थापित करने में है कि संगठित नागरिक आज भी एक शक्तिशाली सरकार को जवाबदेही बना सकता है, यानी आंसरेबल बना सकता है, उनको आंसर करना ही पड़ेगा। That confidence belongs to everyone who participated, documented, volunteered, provided water and food, offered legal assistance, care for the injured or supported the movement from another town। और यह विश्वास उन लोगों का है जिन्होंने इसमें भाग लिया, घटनाओं को दर्ज किया, स्वयं सेवक के रूप में सामने आए, वॉलंटियर्स के रूप में उन्होंने पानी और भोजन की व्यवस्था कराई, कानूनी सहायता दी, घायलों की देखभाल की, और जो दूसरे शहरों से आए थे आंदोलन करने के लिए उनको भी सपोर्ट किया। इट इज़ नाउ आवर ऑब्लिगेशन टू रिमेन प्रेजेंट व्हेन प्रोटेस्टर फेस इंटिमिडेशन, अरेस्टेड, वेलिफिकेशन एंड द एग्जॉस्शन। अब हमारी जिम्मेदारी है कि जब प्रदर्शनकारी को धमकी, गिरफ्तारी और बदनाम किए जाने और थकावट का सामना करना पड़े, तब हमें उनके साथ मौजूद रहना चाहिए। ये हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। जो आज के हमारे आर्टिकल का मेन मोटिव है वो इसी लाइन से आ रहा है, राइट। वेलिफिकेशन का मतलब होता है उसको बदनाम करना। To carry their demands into the legislatures and the ensure to promise made during a crisis are honorable। हमें उन मांगों को विधानसभा और संसद तक पहुंचाना चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि संकट के समय किए गए वादों को हमें पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, सम आर आस्किंग इफ़ द कॉकरोच जनता पार्टी विल बी अ फॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी एक औपचारिक पार्टी दल बनेगी, यानी जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, वैसे बन पाई। अदर विल वॉन्ट दैट द इंगेजमेंट और अलाइंग विद द पॉलिटिकल पार्टीज विल बी कॉम्प्रोमाइज द प्योरिटी ऑफ दियर डिमांड्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। कुछ अन्य लोग चेतावनी देंगे कि राजनीतिक दलों के साथ जुड़ना या उनका समर्थन करना जवाबदेही की उनकी मांग शुद्धता को समझौता होगा। शुद्धता के साथ हम समझौता कर रहे हैं, वो वाली कंडीशन हो जाएगी। दीज डिसीजन ऑफ कोर्स बिलोंग टू इंडिविजुअल। और ये सारे डिसीजन हमारे क्या होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, हर एक पर्सन के अलग अलग डिसीजन होते हैं। बट दे ऑल्सो डिजर्व पेशेंस, डेमोक्रेसी, डिसीजन बाय द पीपल हु बिल्ड द मूवमेंट। लेकिन इन पर आंदोलन खड़ा करने वाले लोगों द्वारा जो धैर्यपूर्वक और लोकतांत्रिक तरीके से की भी इस चीज़ की भी चर्चा होनी चाहिए। देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन टू कन्वर्ट मोरल अथॉरिटी इनटू द इलेक्टोरल कैंडिडेचर। और जो मोरल्स हमारे क्या अथॉरिटीज़ है, हमारे अधिकार हैं, चुनावी उम्मीदवारों में बदलने की अनिवार्यता यानी इलेक्टोरल कैंडिडेचर हो, ये ज़रूरी नहीं।
But there is no shame in the people seeking institution power if they are eventually decided to their purpose required. लेकिन यदि वे यह डिसाइड ही कर चुके हैं कि उनका उद्देश्य है कि सत्ता में उनकी आवश्यकता है, तो उसे प्राप्त करने की कोशिश जो कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। तो वो चीज़ भी करनी चाहिए। अगर कोई कम्युनिटी अच्छा कर रही है, तो वो अगर पार्टी में आती है, तो इससे किसी को भी नुकसान नहीं होता है। इसका हमारा लास्ट पैराग्राफ है। Whatever organization course they choose, my most fervent wish is that they reserve the क्वालिटीज़ दैट मेड मोबिलाइज पावरफुल। वे संगठन के लिए चाहे जो भी रास्ता चुने, चाहे वो पार्टी बनाए, चाहे वो प्रोटेस्ट चुने, मेरी सबसे प्रबल इच्छा है कि वे उन गुणों को बनाए रखें जिनने इस प्रोटेस्ट को क्या बनाया है, पावरफुल बनाया है। उसी को ही अपना सेंटर बनाए रखें। कास्ट, जेंडर, रिलीजन, डिसेबिलिटीज़, लैंग्वेज, रिलीजन, फैमिली, इनकम डिटरमाइंस हु रिसीव अपॉर्चुनिटीज़। ये जो सारी चीज़ें हैं वो तय नहीं करता है कि वे अवसर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हु कैन ऑफर रिपीटेड अटेम्प्ट्स, हु इज़ हियर्ड, हु इज़ अनकाउंटर द हार्टेस्ट रिप्रेजेंट। ये कारण यह भी प्रभावित करते हैं कि कौन बार बार प्रयास करने का खर्चा उठा सकता है, किसकी बात सुनी जा सकती है और किसे सबसे कठोर जो भी इनकाउंटर होता है उसका सामना करना पड़ सकता है। द जनरेशनल मूवमेंट्स एक्वायर लास्टिंग डेमोक्रेसी फोर्स व्हेन दोज डिफरेंस आर रिप्रेजेंटेड विद इन कंसर्न। किसी युवा पीढ़ी का आंदोलन तब तक स्थायी लोकतंत्रीय शक्ति प्राप्त करता है जब तक कि उसकी विभिन्नताओं और असमानताओं की चिंताओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। इसका मतलब ये है कि एक जनरेशनल मूवमेंट एक्वायर्स लास्टिंग डेमोक्रेसी फोर्स, तब फोर्स होता है व्हेन दोज डिफरेंस एंड रिप्रेजेंटेड इन इट्स कंसर्न पे बात की जाए। तो ये हमारा था आज का आर्टिकल। अब इस आर्टिकल से हम देखते हैं कि इसका कंक्लूज़न क्या है। कंक्लूज़न देख लेते हैं जब। द यूथ हैव गिवन अस होप। युवाओं ने हमें आशा दी है, होप दी है कि जो सरकार बनी हुई है, ज़रूरी नहीं है उसी की चले। इट इज़ नाउ आवर टर्न टू रिटर्न द कर्टसी एंड नोट लेट दियर होप्स बी टेस्ट। अब हमारा टर्न ये है कि उनकी विश्वास और सम्मान और उनकी उम्मीदों को हम टूटने ना दें। एज द स्टूडेंट ऑफ पेरिस डिक्लेयर्ड इन मे 1968 शोज रियलिस्टिक डिमांड। उन्होंने कहा था ये कि बी रियलिस्टिक डिमांड द इम्पॉसिबल। यथार्थवाद बनना चाहिए, हमें रियलिस्टिक रहना चाहिए, लेकिन असंभव की मांग भी हम कर सकते हैं। जो नहीं हो सकता उस चीज़ की मांग की जा सकती है, ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है। तो ये पीपल्स की कंट्री है। तो ये हिंदी में लिखा हुआ, आप ये चीज़ चाहो तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आती है हमारे पास वोकेबलरी, जो इसमें पूछी गई है। हम थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेंगे इसको। देखो, इसमें है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट। इसका मतलब पता ही है हमें। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाब देना, अकाउंटेबिलिटी होना। डिवोट का मतलब होता है उसी चीज़ में लीन हो जाना, समर्पित कर देना। प्रिपरेशन तैयारी होती है। एक्सप्लिकेबल समझने योग्य होता है। प्रोटेस्ट हमारा विरोध प्रदर्शन होता है। आइडेंटिटी पहचान होती है। कलेक्टिव एक ग्रुप होता है।
और बिलोंगिंग यानी जिस चीज़ से बिलोंग कर रहा है, अपनापन, रेजिलेंस, कठिनाइयों से उभरने वाला या कठोर, ताकतवर, ये चीज़ भी बोल सकते हैं। सॉलिडेटरी का मतलब होता है एकजुट या यूनियन भी बोल सकते हैं। डिमनिश को मतलब डिम करना यानी कम करना, वोकेबलरी का मतलब हो ही गया। ह्यूमिलेशंस का मतलब अपनापन या ह्यूमन बीइंग से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। इररिलेवेंट का मतलब होता है कि कोई उस चीज़ का मतलब ना होना, अनादरपूर्ण होना। रोजेस का मतलब होता है बदमाश। और हमारे पास आई है इसमें वोकेबलरी कन्वेंशनल, पारंपरिक, इलेक्ट्रोल, मेडिटेट, चुनाव, और ड्यूटी का मतलब कर्तव्य। देन हमारे पास है इंस्टीट्यूशन, कलेक्टिव हो गया। अप्रोचेस, संपर्क करना, पास जाना, रेजिग्नेशन, इस्तीफ़ा। कमिटिटिस यानी वादे, कमिटमेंट करना। प्रोटेस्टर, प्रदर्शनकारी यानी प्रोटेस्ट में भाग लेने वाले। इंटिमिडेशन, डराना, धमकाना। अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना। एग्जॉस्ट करना, एग्जॉस्ट हो चुका है मतलब वो थक चुका है, पूरी एनर्जी उसकी जा चुकी है। लेजिस्लेचर, विधायिका। क्राइसिस, संकट। ऑनरेबल, जिस जिसको हम सम्मान दे सके। पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल। एलिगिंग यानी साथ जुड़ना। कॉम्प्रोमाइज़, समझौता करना। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। डेमोक्रेसी, डिसीजन, लोकतांत्रिक चर्चा। ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी या दायित्व, जैसे हम लिखते हैं ना योर ऑब्लिगेशन करके लिखते हो। इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन, पावर। प्रिजर्वेज का मतलब बनाए रखना। मोबिलिटी का मतलब एकजुट होना। मोब का मतलब भीड़ होता है। मोबिलाइजेशन का मतलब उस भीड़ को एक राय होना, एक ही उनका सेंटेंस होना। कास्ट, जाति, जेंडर, लीग, डिसेबिलिटी, रीजन, क्षेत्र। फैमिली, इनकम, ये पता, अपॉर्चुनिटी, अवसर। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व। कंसर्न, चिंताएँ। रिटर्न टू कर्टसी, यह है व्यवहार लौटाना या सम्मान करना। कर्टसी, रिटर्न द कर्टसी का मतलब होता है कि उनका सम्मान करना। होप्स, उम्मीदें। रियलिस्टिक मतलब रियल दिखो, यथार्थवादी बनो, जैसे हो वैसे। आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी। डिफीट, हराना किसी को। अब ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि हमारे पैसेज में आए थे, जैसे कंपाइल्ड करना, मजबूर करना। बोलते हैं ना कि इस चीज़ को इसके साथ कंपाइल्ड कर देते हैं, तो वो एक जगह किसी चीज़ को घुसाने की कोशिश करना। पोटेंशियल, क्षमता। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। रेजिलेंस यानी कठोर। सॉलिडेटरी, एकजुटता। डिमिनिश, कम करना। ह्यूमिलिएशन, अपमान। इररिलेवेंट, मैंडेटरी, जैसे कि ये इम्पोर्टेंट है। इंटिमिडेशन, धमकी या डराना, इंटीमेट करना। एग्जॉशन, थकावट। लेजिस्लेचर, विधायिका। ऑब्लिगेशन, दायित्व। मोबिलाइजेशन, संगठित करना। इनइक्वालिटी, असमानता। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व, जो कि प्रेजेंट करने वाले हैं कोई भी चीज़ उसके रिगार्डिंग। अब हमारे पास इसमें कुछ क्वेश्चन है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एमसीक्यूज, इसके साथ साथ कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, सेंट्रल थीम कौन सी बन सकती है। तो देखो, जेन-ज़ी डिपेंडेंट ऑन सोशल मीडिया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे थे कि जो वहाँ पे रियल में प्रोटेस्ट करने आए थे, बात भी रखते। जेन-ज़ी कंट्रीब्यूट टू डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, ये सही चीज़ है कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया है अकाउंटेबिलिटी के लिए, जवाब मांगने के लिए। तो ये होगा नहीं, फिर दिख ही रहा है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, वुड हैज़ जेन-ज़ी चेंज, क्या चीज़ जेन-ज़ी ने चेंज की है। द एजुकेशन सिस्टम, नहीं, वो सरकार ही करेगी। इलेक्ट्रिकल सिस्टम, वो भी वही करेगी। लेकिन द पॉलिटिकल लैंग्वेज ऑफ प्रोटेस्ट है ना, वो जेन-ज़ी ने चेंज कर दी है कि कैसे हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट डज द फ्रेज सिट
अप एंड लिसन, ये आ भी सकता है रिसेंट के एग्ज़ाम में, सिट अप एंड लिसन, क्योंकि जो करंट में रहता है उस अकॉर्डिंग आता है। तो इसमें देखो हमारे पास है, इसका मतलब होता है टू बी अ फिजिकल एक्टिव, नो, टू पे सीरियस अटेंशन। सिटअप का मतलब एक बार बैठो और उसको केयरफुली सुनो, अटेंशन को। व्हाट डज इलेक्ट्रोकल मैंडेट मीन का मतलब है कोर्ट ऑर्डर नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूटी नहीं, अथॉरिटी रिसीव बाय अ गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शंस, जो अथॉरिटी को रिसीव हुआ है गवर्नमेंट के थ्रू थोट्स इलेक्शन के लिए, उसमें काम आता है, मैंडेटरी हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर एंड द इलेक्ट्रोल मैंडेट डज नॉट बी रिलाइव अ गवर्नमेंट ऑफ इट्स ड्यूटी। तो यहाँ पे देखो कंडक्ट इलेक्शंस, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर सिटीजन बिटवीन इलेक्शन, उन्हें आंसर करना ही पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी उनको दिखानी पड़ेगी। हाउ डिड प्रोटेस्ट compensate when established media failed to show what was the happening। अगर ऐसा कुछ होता तो क्या होता, तो देखो दे स्टॉप प्रोटेस्टिंग, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। दे अप्रोच कोर्ट्स, ऐसा भी कुछ नहीं होता। दे रिप्रेजेंट दैम सेल्फ यूजिंग दियर फोन्स, तो उन्होंने क्या किया है कि जब वहाँ पे कोई मीडिया नहीं था, कोई शो ऑफ करने वाला नहीं था, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, दे रिप्रेजेंट दैम सेल्फ यूजिंग दियर फोन, से उन्होंने हेल्प ली। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द पैसेज स्टाई कैन का मतलब क्या होता है, हमने भी देखा था, क्रिटिसाइज करना या व्यंग्य करना। रिप्लेस इलेक्शन नहीं, एक्सपोज करना आर्ग्यूमेंट को क्विकली, तो ये है स्टायर, ठीक है। प्रिवेंट पॉलिटिकल डिसीजन, ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट डज रेजिलेंस मोस्ट नियरली मीनिंग टू पैसेज, देखो वेल्थ से है नहीं इसका। एबिलिटी टू कवर टू द डिफ़िकल्टीज, डिफ़िकल्टी को रिकवर करना, पॉलिटिकल अथॉरिटी ओब्लिगेंस, ऐसा कुछ नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट मेंशन एज अ प्लेस वेयर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट, जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, तो देखो कैंपस में करती है, पब्लिक मीटिंग्स में करती है, पीसफुल प्रोटेस्ट में भी डेमोक्रेसी होती है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना, उसमें डेमोक्रेसी का कोई लेना देना नहीं होता। जहाँ पे सरकारी चीज़ें आ जाती है ना, वहाँ शुरू हो जाती है डेमोक्रेसी। what does the author consider the deeper significance of the protest, तो देखो दे क्रिएटेड अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी, नहीं ऐसा कुछ नहीं करे थे। दे प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन सिटीजन कैन मेक अ गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो, उस चीज़ का हमें जवाब दे कि ऐसा क्यों कर रही हो, ये दोनों फिर होंगे नहीं। वीकनेस है नहीं हमारे डेमोक्रेसी, ऐसे कुछ नहीं। चूज़ द सिनोनिम कंपाइल, अब कंपाइल का हमने किया था मजबूर करने से, यानी किसी को फोर्सफुली करना, तो इसमें फोर्स दिख ही रहा है, फोर्स करना। चूज़ द सिनोनिम्स ऑफ डिमनिश, अब डिमनिश का मतलब क्या होता है, डिम करना, डिम का मतलब होता है कम करना, तो कम करने का एक ये में दिख रहा है रिड्यूस करना। एंटोनिम्स ऑफ पीसफुल का मतलब होता है शांति, और देखो काम का मतलब शांति, फ्रेंडली शांति, क्वाइट शांति, तो वायलेंट करना, विद्रोह करना। सिनोनिम्स इसका ह्यूमिलेशन का मतलब होता है कि ह्यूमन बीइंग को समझना, अपनापन दिखाना, तो इसका हमें सिनोनिम्स देखना है। ऑनर होगा नहीं, अचीवमेंट, कॉन्फिडेंस नहीं है। इंसल्ट एक अलग होता है, इंसल्ट का मतलब होता है अपनापन दिखाना। चूज़ द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ इंटीमेशन, इंटीमेशन का मतलब क्या होता है कि किसी को डराना, धमकाना, इंटीमेट करना। राइट, तो यहाँ पे देखो एप्रिसिएशन होगा नहीं, कोऑपरेशन कर नहीं रहा है, इनक्रेज नहीं कर रहा है, थ्रेटिंग और फ्राइटिंग समवन। नेक्स्ट है हमारे पास चूज द एंटोनिम, एंटोनिम्स चूज करना है। एक्सेसिबल, अवेलेबल कराना,
ये एंटोनिम, ये तो इसका सिनोनिम हो गया। रीचेबल, ये भी सिनोनिम हो गया इसका। और अनएक्सेसिबल, तो ये दिख रहा है ना एंटोनिम, तो ये हो जाएगा। कन्वीनियंट करना, ये भी इसका सिनोनिम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीवेंट विश, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है स्ट्रोंग एंड पैशनेट डिज़ायर। फर्वेंट विश, ठीक है, जो स्ट्रोंग डिज़ायर हो, पैशनेट हो उसके लिए। फर को वेंट कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास चूज द सिनोनिम्स ऑफ प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब होता है संभाल करके रखना, है ना। तो इसका मतलब होता है, देखो, डिस्ट्रॉय का मतलब बिगाड़ देना, संभाल के, रिजेक्ट, रिड्यूस नहीं, मेंटेन करके रखना। जो चीज़ है उसको रिजेक्ट नहीं करना, उसको कम भी नहीं करना, उसको डिस्ट्रॉय तो बिल्कुल भी नहीं करना, मेंटेन करके रखना है। अब यहाँ पे व्हाट कैन बी द इन्फ्लुएंस अबाउट द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स जेनजी। जेनजी के रिगार्डिंग कैसा था? एडमायरिंग एंड सपोर्टिव, यानी हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए जो उनकी लैंग्वेज थी पीसफुली, उस अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डज द ऑथर मेंशन कास्ट, जेंडर, रिलीजन, डिसेबिलिटी एंड इनकम। ये हमारे ऑथर ने क्यों कहा? क्योंकि टू हाईलाइट अनइक्वालिटी विद इन जेनजी। जो वहाँ पे जितने सारे जेनजी आए थे उनमें हर चीज़ की क्या थी? इनइक्वालिटीज़ थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक साथ आकर के वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट की। What does the author suggest about the political powers? Political powers के बारे में क्या कहना चाहते हैं? Seeking institution power is acceptable, कि हाँ इंस्टीट्यूशन में पावर होती है, वो देखते हैं। इफ़ इट इज़ हेल्प अचीव दियर ऑब्जेक्टिव, अगर वो उस ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से अचीव कर पा रही है। then नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द ऑथर्स मेन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ओल्डर जनरेशन, से क्या है कि वो उनको सपोर्ट करे। तो देखो, टू सपोर्ट एंड प्रिजर्व द डेमोक्रेसी स्पिरिट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय जेनजी। जो भी उन्होंने किया है उनको, उनका सपोर्ट करे, उनको बनाए रखे, उसमें उनकी हेल्प करे, राइट। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेस द ऑथर कंक्लूजन। ऑथर के कंक्लूजन को सबसे बेस्ट कौन एक्सप्रेस कर रहा है? तो देखो, प्रोटेस्ट आर मोर इम्पोर्टेंट देन इलेक्शन। नहीं, प्रोटेस्ट तो तब किया जाता है ना जब हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती। जेनजी शुड इमीडिएटली फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी। नहीं, यंग पीपल हैव रिवाइव होप इन डेमोक्रेसी पार्टीशन एंड द सोसाइटी शुड सपोर्ट दियर इंस्पिरेशन। ये सही है कि यंग पीपल जो भी आशा लिए हुए डेमोक्रेटिक के लिए, तो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, उनके इंस्पिरेशन को। ठीक है, तो हमारे पास इसमें वोकेबलरी भी हमने इसमें डिस्कस कर ली, प्लस क्वेश्चंस भी हमने इसमें डिस्कस कर लिए, प्लस जो इसका हिंदी में मीनिंग होता है वो भी हमने डिस्कस किया। तो हमें लंबे लंबे पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा एकदम डीपली, जैसे कि कोई स्टोरी हो उस रिगार्डिंग, थोड़ी सी फिर हमें रीडिंग में हेल्प मिलेगी। और आप बता सकते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच।